May I kindly request silence from the audience? Kindly put off your mobile phones. Today is dedicated to a national level women's conference. The subject of the conference is Women's Empowerment as envisioned by Swami Vivekananda. We begin the day with Vedic chanting by students of Rasik Bhita. In the meanwhile, I request the speakers of the first session to please come on the dais. Pravrajika Atanda Pranamataji, Pravrajika Dhruva Pranamataji, Srimati Nivedita Bhide are kindly requested to come on the dais. I also request Pravrajika Sachit Pranamataji and Dr. Sumita Roy to come on the dais. Now we commence with Vedic chanting by students of Rasik Bhita. Now we will have the opening song by Pravrajika Bhavani Prana Mataji, head of Ramakrishna Sharada Mission, Guntur. विरागता विवेक्तते भजन्तमन्तकान्तकं गुरोरते प्रियं यतिं नृलोकमुक्तिमानसं
सलीलशब्द भाषणैः विनिर्जितोरु संसदा जगाधेतं हितैषिणं विवेकिनं नमाम्यहम् प्रदीप्तसिंह पौरुषं प्रफुल्ल पंकजाननं जगज्जयेते संनितं महोजसं जितेन्द्रियम् अनंत बुद्धिसंपदं विशुद्ध सत्व विग्रह क्षमार्जवा कृतं चिरं नमामि संघ नायकम् प्रचार कर्म संतते प्रगुप्त भक्ति कांतकम् प्रशांत भाल भास्वरा भ्रमनिलिम्प सुंदरं नवीन भाव रम्यक ज्वलन्मयूख मालया तमस्तु तैर्निराकृति नमामि वीर नायकम् अजस्र भारते सुधा निषेकलोक मानस प्रसुप्ति भंग पैशल प्रकांडमर्त्य तारकम् समाधि सिद्धि भाविनी सुसेवनापराधकम् जगद्दुरन्धरं मुदा नमामि विश्वनायकम् प्रतीच्य चण्ड जिह्मग स्मुरद्विष्पाप हानकम् विनिद्ररात्रि चिन्तने क्षयीकृत स्वजीवनं प्रतीच्य चण्ड जिह्मग स्फुरद्विशाप सारक विनिद्ररात्रि चिन्तने क्षयीकृत स्वजीवनम् अशेषशास्त्र मंथन प्रसिद्ध बोध भास्करं सुमेधसां गिराङ्गुरुं विवेकिनं नमाम्यहम् जगद्दुरन्धरं मुदा नमामि विश्वनायकम् तमस्तु तैर्निराकृतं नमामि वीरनायकम् जगद्धितं हितैषणं विवेकिनं नमाम्यहम् क्षमार्जवा कृतं चिरं नमामि संघनायकम् नमामि वीरनायकम् नमामि विश्वनायकम् नमामि संघनायकम्
भज रे स्वामी विवेकानन्दं भजयति राज मानस सततं भज रे स्वामी विवेकानन्दं भजयति राज मानस सततं त्यक्तसप्तमुनि विशाललोकं नाशितभुजन गुरुतरशोकं त्यक्तसप्तमुनि विशाललोकं नाशितभुजन गुरुतरशोकं रामकृष्ण गुरु पदाब्जभृङ्गं प्रसाद मधुबल विजितानङ्गं रामकृष्ण गुरु पदाब्जभृङ्गं प्रसाद मधुबल विजितानङ्गं भज रे स्वामी विवेकानन्दं भजयति राज मानस सततं भज रे स्वामी विवेकानन्दम् आत्मश्रद्धा स्थापित धर्म मज्जद्भारत मन्दरकूर्मम् आत्मश्रद्धा स्थापित धर्मं मज्जद्भारत मन्दरकूर्मम् हंसशक्तियुक्त महदुरुनामं परमहंस सुधापूरितभावं हंसशक्तियुक्त महदुरुनामं परमहंस सुधापूरितभावं भज रे स्वामी विवेकानन्दं भजयति राज मानस सततं भज रे स्वामी विवेकानन्दं विवेकानन्दम्. Now, Pravrajika Jnanada Prana Mataji will felicitate the speakers. First, Most Revered Dhruva Prana Mataji of Trishur Math. Pravrajika Sachit Prana Mataji. Pravrajika Sachit Prana Mataji of Sri Sharda Math Dakshineshwar. Pravrajika Atandar Prana Mataji of Sri Sharda Math Dakshineshwar. Srimati Nivedita Bhide, Vice President Vivekananda Kendra, Kanyakumari.
Dr. Sumita Roy, Professor, Department of English, Osmania University. Thank you, Mataji. Now we request Pravrajika Atandarpana Mataji, Assistant Secretary Shri Sharda Math and Ramakrishna Sharda Mission, to give the welcome address. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukaswarupaya Swamine Tapaharine. I really feel very happy to welcome you all on behalf of Sri Sharda Math and Ramakrishna Sharda Mission today. This being the second day, the celebrations of 150th birth anniversary of Swamiji on this historical ground at Shobha Bazaar. Those who were present yesterday must have felt the presence of Swamiji and must have enjoyed the occasion. Today, our main theme in the women's empowerment is women's empowerment as envisioned by Swamiji. See, history in the past was written by men, but women may not have written the history of the past, but they have been the custodians of the past, the guardians of tradition, customs, and they define a home, a city, a state, a culture, a civilization. Even if men float on the waves of any new idea, new customs, a new influence, it is women who hold fast to the traditions and then ground a culture, a civilization. The mothers are the strongest influence in any child's life, as they are the first memories of any child. Grihini griha muchyate, as Swamiji even said, the pillars or the bricks cannot make a home. It is mother who makes the home. It's the same case with the case of the country. It is the lessons and the values that the child learns that will last. And no matter whatever the influence may be in the later life, it is this basis that will always remain with the child. Swamiji strongly believed that if the past was for muscular men, the future is for metaphysical women. Then he had so much strong faith. It is even surprising, even today's modern thinkers don't equal Swamiji in this way. He was the one to make the bold prophecy that the coming centuries will see a super culture coming up, which is a cross fertilization of all that is best in East and West, science and religion, and that should be done by women, he said. And that should be done by women, and that too competent women. If not, we will be at the point of annihilation. He interpreted that the meaning of the advent of Holy Mother, he saw that this will fructify, eventually come to the real empowerment of women. He saw in the near future they will be coming up in all fields, whether it is science or politics or whatever it may be. So he spoke of not only man-making but mother-making and envisioned women coming up in all fields. So Swamiji said, with the advent of Holy Mother, Sri Sharda Devi, you will see there will be great power rising, and you will see how it will come. The women will come up in all fields. So today, after these 100 years of his famous utterance, we are here to evaluate, really, is it so? Really, do we see the women coming up in all fields? So we have invited some of the eminent people from all fields, from the academicians, as you can see on the stage,
And then Nivedita Bhire is the Vice President of Kanyakumari Vivekananda Kendra Foundations. We are really proud of her. And Dr. Sumita Roy is also a well-known person in all the Ramakrishna Mission, Ramakrishna Vivekananda Circle. She is not only a professor but a director of this one. She is the director of Osmania University Center of International Programs. She has dedicated her life to the field of education. She will now focus on ensuring that the women, the Indians, graduate not only in technical skills but also in the soft skills. So that is how she has brought Swamiji close to the home of all these children, all these students. She has made this the vibrating and living Swamiji Vivekananda study circles. Now, Chandrika Chavan is another person whom we have invited. She has come all the way from Maharashtra here. She is the founder and the chairman of Udyoga Vardhini. We will hear from her own words, her own mouth, how she struggled and then came to this status. Born and raised in Gujarat, her career is a true example of Swamiji's that had in mind when he talked about the women's empowerment and freedom. She has tirelessly worked for the upliftment of women and masses through her career. From working for the Janakalyan Samiti, she has in the slum areas until her present post. In 2003, she has started Udyoga Vardhini, initially aimed at making rural women independent. Now her Udyoga Vardhini has given shelter to so many women, and I am proud to say she is spreading her ideas, and that is also the true ideas that Swamiji wanted to spread. And now more than 3,000 women are associated with the Udyoga Vardhini. And she is helping the rural women to come up and have the self-confidence which Swamiji wanted very much. And she is also running helplines for the distressed women, and so that she is telling so nicely, so that they can at least sleep nicely in the night. So that is how we are proud of all these who are coming from far off places, answering to our call. And here are our Matajis also. Now, Dhruva Prana Mataji will give keynote address. She is the manager of Sharda Girls Higher Secondary School in Trishur. And then our Sachit Prana Mataji. She has extensively traveled in the foreign countries. She has done something what Swamiji wanted very much, to spread Indian Vedantic ideas in the West. So we are happy to have all of them. And then I welcome now Dhruva Prana Mataji. The first one is Dhruva Prana Mataji to give the keynote address on behalf of Sharda Math and Ramakrishna Mission. We welcome Revered Dhruva Prana Mataji to the podium to give the keynote address. Her subject is women's empowerment. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Dear sisters and brothers, today I have to talk on the topic women and empowerment.
The West says, do show your power by doing. But India says, show your power by suffering. And Indian women are the living models of this theory, even in the ultra-modern age. Swamiji says, Sita should be the ideal of Indian women. He says, there can be so many Ramas, but never more than one Sita in the history of the whole world. That is, Sita is unique. As we all know, Sita had to suffer a lot, even though she was a princess wedded to Sri Rama. In spite of all the sufferings she had, she made no complaint anywhere, anytime. She was the personification of titiksha. This act of suffering was not because of any selfish interest, but for the happiness and well-being of others. This has been taken for granted since long time back. In the medieval period of history of India, when India was under the rule of different emperors like Mughal, British, women had been denied even the basic rights such as access to literacy, freedom and property. And now that state has already been entirely changed. In spite of literacy and freedom, etc., it is too common and normal to have an attack on women at any time, anywhere. It seems that the mantra to be sure of not being attacked is don't exist. Here comes the relevance of Swami Vivekananda's thoughts on women empowerment. In ancient India, even from Vedic age, we could see women had equal freedom, rights, literacy and power as men. She was not an object of pity, neglected, weak or needing help from others. The pages of our cultural history are aglow with noble women like the scholarly Swathis, Gargi, Maitreyi, the chaste Sita and Savitri, the great Tapaswini, Gandhari and others. Far from being treated as a commodity, these women enjoyed the highest respect and honor in society. They were treated as the representation of Shakti. They were Shakti Swarupinis. The power of inner purity and chastity of a woman was her strength. Once, a Mughal emperor happened to see a very beautiful Hindu girl. She was attracted so much by her beauty that he wanted her to bring to him. Knowing this, his attendant Usman brought her to the emperor. But when he looked at the face of the girl, he was wonderstruck. He wondered whether she was a goddess of strength.
He bowed before her and begged her pardon, saying that he was only a dasa, not meaning servant. He sent her back to her home with all care and respect. This is taken from one famous poem in Malayalam by a famous Malayalam poet. The name of the poem is Bharata Strigal Tan Bhavashuddhi, Bhavashuddhi of Indian women, the inner purity of Indian women. The strength of her inner purity and chastity had conquered the emperor. We all know how Holy Mother Sarada Devi had protected herself from the attack of mad Harish and cured him by punishing him. The ideal woman in India is the mother. Mother first and mother last. Motherhood is the perfection of Indian woman. Here, when we say mother, it is not in the biological sense, but in the spiritual sense. When a woman grows spiritually and develops her heart to embrace the whole world with selfless love, she becomes a mother. Mother is all in all in a family. She is of a family, bringing peace and happiness to all. There is a saying, Na griham grihamuchyade, grihini grihamuchyade. It is the mother who makes a house a real home. Today, it is a great pity that we are reduced to talking about the women empowerment. Women's empowerment aims at equal partnership and joint responsibility with duties of the family and in every field of society, distributed equally between man and woman. Mothers, being the architects of their children's lives, their education has to be given priority. Women are teachers as well as mothers. The children in his childhood learns from the mother. As the proverb goes, if you educate a man, you will educate a person only. And if you educate a woman, you educate a whole family. This was just the realization of Swamiji after his travels in the West. There he saw women educated and free, and he dreamt of giving education to the women of India also. Sister Nivedita's coming to India was to materialize this dream of Swamiji. His idea of educating women was different from the modern approach. He stressed the simple essential points in religion, arts, science, cooking, housekeeping, hygiene, etc. should be taught to women. The noble examples of the lives of Sita, Savitri, Damayanti, Meera, Jhansi Rani, etc. should be brought home to their minds, and they should be inspired.
they should be inspired to mold their own lives in the light of these great women. Swamiji's ambition in his life was to set in motion a missionary of women which will bring noble ideas and ideals to the doors of everybody and let them make their own future. He kept on insisting that the same divine soul is present in all beings and women have equal rights and claims as men. So it is not right to consider women as mere manufacturing machines. Now women are highly educated and they work in high posts in every field in which there were only men before. In spite of this, they are considered as powerless and often fall into dangers. What is the reason of this? Real empowerment of women, however, lies in helping them unfold the spiritual aspect of their personality build up their character and manifest their purity and motherhood. It is these qualities that make up the character of an ideal Indian woman. Earning capacity and public status are only secondary. Swamiji never thought that it was possible for man to solve the problems of women. If they are given proper education, women themselves can solve their problems and automatically become capable of looking after themselves. They will develop the purity of Sita along with the courage of Jhansi Rani. It was the strong belief of Swamiji that if women were raised, their children would by their noble actions glorify the name of our country. Culture and knowledge, power and devotion awake in our country. The rise of outstanding women in the field of administration, science, statecraft and spirituality is proving the truth of Swamiji's words. Manusmriti says, Yatra naryastu pujyande, tatra ramande devataha. The country which pays proper respect to women will become great and prosperous. Following the footprints of Holy Mother and Sister Nivedita, women now are coming forward with a combination of mother's heart and hero's will. Let us hope more powerful women will come onto the stage of this world in near future. Thank you all. We thank revered Mataji for her inspiring and meaningful words. Now we welcome Srimati Nivedita Bhide, Vice President Vivekananda Kendra Kanyakumari, to the podium. She will speak in both Hindi and English. Her subject is Cardinal Values of Ideal Womanhood. Srimati Nivedita Bhide
travels extensively spreading Swamiji's message of women's empowerment, nationalism and empowerment of the masses. She has received the Vandaniya Saraswati Tai Apte Award from Bharatiya Stree Jeevan Vikas Parishad for sustained developmental work in society. Srimati Nivedita Bhide. परम श्रद्धेय ध्रुव प्राणा माता जी, सच्चित प्राणा माता जी, सुमिता दी, शारदा, श्री शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन की अपना जीवन ही माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद ठाकुर ने जो मार्ग दिखाया है उस पर समर्पित करने वाली समस्त माता जी, यहाँ उपस्थित बंधु भगिनी, आप सबको मेरा विनम्र प्रणाम। आज का जो विषय है वह है कार्डिनल वैल्यूज़ ऑफ आइडियल वुमनहुड, आदर्श नारीत्व के मूल तत्व क्या है। पहले हम वह नारीत्व देखने के पहले स्वामी विवेकानंद ने जो बोला था कि हमें वेदांत को व्यावहारिक करना है, और वेदांत यानी क्या, तो एक ही अनेक रूप से प्रकटित हुआ है, और इसीलिए ये जो अस्तित्व है ये परस्पर जुड़ा हुआ, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। सो व्हेन द एग्जिस्टेंस इज इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, वी ऑल बीइंग द पार्ट्स ऑफ इट, वी हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द गुड ऑफ द होल। एंड एज आई एम पार्ट ऑफ द होल, मैं पूर्ण का एक अंग हूँ। सो फॉर दैट आई हैव ए स्पेसिफिक रोल टू प्ले। सो इन दिस विजन ऑफ वननेस, ईच वन ऑफ अस, वेदर ए मैन और वुमन, वेदर प्लेस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्ट्रेटास, वी ईच वन ऑफ अस हैव ए रोल टू प्ले। और इसी अद्वैत में जो दूसरा तत्व है वह ऐसा है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं है। आत्मा का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वह आत्मा अपनी स्वयं की अनुभूति के लिए अनेक शरीर धारण करता है, अनेक जन्म में। किसी जन्म में वह स्त्री का शरीर हो सकता है, किसी जन्म में पुरुष का हो सकता है। स्त्री हमेशा स्त्री का ही जन्म लेगी या पुरुष पुरुष का ही लेगी, ऐसा नहीं है। ये अभी जो पुनर्जन्म पे रिसर्च हो रहा है उसमें भी सिद्ध हुआ है। सो व्हेन देयर इज एज सच, देयर इज नो सेक्स टू द सोल। द सोल टेक्स ए डिफरेंट बॉडी, ए बॉडी which it requires for its further growth. So suppose when I take a body of a woman, I have a special characteristic, special values, special way of looking at the thing, a specific contribution that I can make to the whole, and therefore I must protect my that womanhood. I should cherish my those values which only I can practice. Similarly, a man, he has taken a body of a man in this birth, so he needs to contribute in that way. This is the another principle. Just to give this simile, the example, you know, in human body there are many organs. अब ये पूरे मानव शरीर में जो अलग अलग सारे अवयव है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब माँ के गर्भ में वो बढ़ते हैं, तब जब वो बढ़ते हैं तब वो विविध होते हैं, यानी किडनी सेल आएगा, ब्लड सेल आएगा, बोन सेल आएगा, सारे एक जैसे ही नहीं होते हैं। यदि वो सारे एक जैसे ही होंगे तो फिर क्या होगा, वो तो एक मांस का गोला होगा और वो एबॉर्ट करना होगा। लेकिन जब वो विविध होते हैं, वो अलग अलग किडनी सेल, ब्रेन सेल, फिर उसका ब्रेन, किडनी ऐसा बनता है। लेकिन ये विविध तो है, लेकिन उसको जोड़ने वाला एक प्राण तत्व नहीं है, तो भी वह मृत बालक का शरीर होगा, और इसीलिए फिर से उसको दफनाना होगा। तो विविधता भी चाहिए और एकात्मता भी चाहिए। तो जैसे अभी शरीर में किडनी है, ब्रेन है, हृदय है, और यदि किडनी कहती है कि भाई मीन्स आई शुड वर्क लाइक ए किडनी, it's better we also, both the kidneys tell, it's better we also work like brain.
so that this body will be very intelligent, 3 brains. But that doesn't work that way. If there are 3 brains and no kidneys, the human body will not survive. It needs kidneys, it needs brain. Similarly, whether in a family, in a society, in the whole creation, each individual constituent has a role to play. It is irreplaceable, it is indisposable. It is not just a supplement, but it is complement to all other. So, same way, when we come to the role of woman in our country, our culture, यही हमने समझा था. और इसीलिए जो श्रद्धेय ध्रुवप्राणा माता जी ने शुरू में बताया कि स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि the power of suffering is far more greater than the power of doing, power of achieving. इसको लेते हुए स्वामी जी को ऊपर आज प्रश्न उठाने वाले लोग भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज अपने देश में सिर्फ व्यक्तिवादिता की ही बात होती है. इसलिए मैंने मेरे लिए क्या प्राप्त किया, ये सबसे महत्व का होता है. मैंने मेरे लिए ये प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, वो प्राप्त किया, लेकिन मेरा दूसरों से क्या संबंध है, ये कोई आज मतलब नहीं रखता है. लेकिन एक्चुअली यदि हम देखते हैं तो क्वांटम फिजिक्स also is coming to the same conclusion that this whole universe is interconnected, interrelated, interdependent. And in that, Fritjof Capra in his book Turning Point, he says that when we try to understand the subatomic particle, a very smaller and smaller and the smallest thing, what is that thing? You can define that thing, that is subatomic particle, only in its connections with other things. And what are other things? They are again defined by their connections with still other things. तो इसी को यदि हम, if we apply it to the human life, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की विशेषता किसमें है, मैं स्वयं में क्या हूं इसमें नहीं है, तो मेरा बाकी लोगों से संबंध क्या है, इसमें मेरी सच्ची परिभाषा होती है. यानी मेरा बाकी लोगों से संबंध क्या है. और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं इस परिवार का, इस समाज का एक घटक हूं, और इस परिवार के भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए, इस राष्ट्र के संवर्धन के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए मैंने स्वयं कितने कष्ट उठाए हैं, इससे मैं परिभाषित होती हूँ. मैंने कितने कष्ट झेले हैं, हाउ क्वाइटली आई सफर सो दैट माई फैमिली स्टेज टुगेदर, आई सफर सो दैट माई ऑर्गेनाइजेशन इज वाइब्रेंट, आई सफर सो दैट वेयर आई एम वर्किंग दैट प्लेस इज फुल ऑफ डायनामिज्म. इफ आई कीप ऑन ग्रजिंग ऑल वर्क इज कमिंग ओनली टू मी, सब मुझे ही करना पड़ता है, तो ऐसा होता नहीं है. सब जगह ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा करने वाले होते हैं, कुछ कम करने वाले होते हैं. जैसे परिवार में माँ सवेरे से रात तक मेहनत करती है, जैसे शरीर में हृदय जो होता है वो 24 घंटे काम करता है, और हाथ पांव या दिमाग भी बहुत कम काम करता है. तो यदि हृदय ऐसा बोलने लगेगा कि ये दिमाग तो 10% ही काम करता है, तो मैं भी 10% ही काम करूं, तो वो शरीर चलेगा नहीं. उसी प्रकार स्त्री का जो स्थान है वो अपने परिवार में हृदय जैसा है. इसीलिए वो गृह लक्ष्मी है. पुरुष तो सिर्फ गृहस्थ है जो घर में रहता है, लेकिन स्त्री जो है वो गृह लक्ष्मी है, वो उसकी देवता है. यदि वो जिस प्रकार से रहेगी, क्योंकि वो सतत जलती रहती है, चलती रहती है, सारा कठिनाई उठाती रहती है, और इसीलिए परिवार एक साथ रहते हैं. आज भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी कोई ताकत है तो वो अपने परिवार है, और उस परिवार की ताकत स्त्री है. और इसीलिए स्वामी, और वो स्त्री भी माँ करके उस परिवार को जोड़ के रखती है. इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ये दूसरा बहुत महत्व का बिंदु, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे यहाँ जो माता जी ने भी अभी बताया कि हमारे यहाँ स्त्री इज ए वुमन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, शी इज ए वुमन, शी इज ए मदर, ए वुमन इज ए मदर, शी इज ए मदर फर्स्ट एंड मदर लास्ट. फिर स्वामी जी उसका कारण देते हैं, क्यों. इसका मतलब पत्नी को कोई महत्व नहीं, या बेटी को महत्व नहीं, या बहन को महत्व नहीं, ऐसा उसका अर्थ नहीं है. स्वामी जी कहते हैं हमारे देश में तो एकदम छोटी लड़की भी है तो भी उसको माँ करके पुकारने की हमारी पद्धति है.
जैसे कोई सीता नाम उसका है बेटी का, तो जैसे आंध्र प्रदेश में उसको सीतम्मा करके बुलाएंगे, कहीं सीता बेन करके बुलाएंगे, कहीं सीता माँ करके बुलाएंगे, सीता बाई करके बुलाएंगे। फिर स्वामी जी उसका कारण देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि क्यों माँ करके बुलाते हैं, कि स्त्री बोलने के बाद जब वो माँ के रूप में हम देखते हैं तब उसको और कहीं भी निचले स्तर की वासना का गंध नहीं जुड़ सकता है। एंड दैट इज व्हाई वी आर टॉट टू लुक एट ए वुमन एज ए मदर, सो दैट नो बेसर थॉट्स विल बी अटैच्ड टू दैट, एंड दैट इज द रियल प्रोटेक्शन फॉर वुमन. The protection for women is not parda or veil. The protection for women is not the laws and legislations that you want to bring and punish people for this and that and that. That is not. Ultimately, it is the eyes of the beholder which decide what that woman will be and how he will look at the woman. We have a very best example of Sri Ramakrishna Paramahamsa. जब माथुर बाबू उनको लेके गए थे तो वो उस वेश्या का सारा गीत सुन रहे थे, एकदम ऐसा ध्यान देके सुन रहे थे। माथुर बाबू को लगा जो सोच के मैंने लाया वो शायद हो रहा है, और जैसा गीत हो गया श्री रामकृष्ण ने, ठाकुर ने बताया कि माँ तुम क्या क्या रूप धारण करती है, और वो माँ के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब तक तो कोई उसको माँ करके देख ही नहीं रहा था, और यहाँ एक देवता तुल्य व्यक्ति है जिसने उसे माँ करके पुकारा है। तो यह अपनी संस्कृति रही है, और यही स्त्री की सबसे अच्छी सुरक्षा करती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, तो अपने सारे संत साहित्य में हमने स्त्री को जगत जननी का स्वरूप करके देखा है। स्त्रिया समस्ता तव रूप भेदा, सप्तशती में हम कहते हैं कि इस विश्व की समस्त विद्याएं, समस्त महिलाएं, वो सारा माँ आपका रूप है, वो जगत जननी ही इन अनेक रूपों में प्रकटित हुई है। और महाभारत में तो इतनी एक सुंदर अच्छी कहानी है। महाभारत में कहते हैं, वो कहानी में ऐसा है कि स्त्री यानी धार्मिक ही होगी, स्त्री यानी जगत जननी ही होगी, स्त्री यानी लोगों को सही मार्ग पर ही लेके जाएगी। श्री रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं कि जिसने ईश्वर का दर्शन किया है वही स्त्री को समझ सकता है कि स्त्री क्या है। तो महाभारत में ऐसा था कि स्त्री ऐसी ही थी, और इसीलिए क्या हो रहा था कि सारे पुरुष अच्छे मार्ग पर ही जा रहे थे, क्योंकि स्त्री स्वयं जगत जननी और वही अपने पति को, अपने बेटे को, अपने भाई को मार्गदर्शन कर रही। तो समस्या ऐसी हो गई कि नरक में कोई जा ही नहीं रहा, सारे स्वर्ग में ही पहुंच रहे, और इसीलिए गए वो मृत्यु लोक के जो लोग थे कि हमें कुछ काम नहीं, हमारा ये सारा नरक पूरा खाली पड़ा है, और वो ब्रह्मदेव के पास गए कि कुछ तो भी तो कीजिए, क्योंकि ये गड़बड़ हो रही है, सारा इम्बैलेंस हो रहा है। तो ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है, चिंता मत कीजिए, और फिर उन्होंने स्त्री जैसी दिखने वाली एक कृत्या को निर्माण किया। कृत्या है ना राक्षसी, लेकिन वो दिखती थी स्त्री जैसी, और उसने फिर पुरुषों को मार्ग से विचलित कराना, गलत बातें करना शुरू किया। और इसीलिए यदि हम अच्छा काम कर रहे हैं हम स्त्री है, यदि कोई गलत काम कर रहा वो कृत्या है, दिखती तो स्त्री जैसी है। और स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसी को दो बातों में बताया था कि स्त्री ये शुभ शक्ति है और अशुभ शक्ति है, विद्या शक्ति है और अविद्या शक्ति है, और यह विद्या शक्ति को हमने प्रकटित करना है। स्वामी विवेकानंद को किसी ने जाके पूछा कि क्या विधवाओं ने विवाह करना चाहिए क्या, तो स्वामी विवेकानंद बोले हैंड्स ऑफ, आप कौन है तय करने वाले कि विधवा ने विवाह करना है नहीं करना है, ये स्त्री स्वयं तय करेगी, ये करने की क्षमता उसमें है। हमारे देश में सिर्फ गार्गी मैत्रेयी नहीं, बहुत लंबी लाइन है वेद से लेते हुए अभी तक ऐसे महिलाओं की, और वो सक्षम है। इसीलिए किसी ने आके स्त्री को एम्पावर करना ऐसी कोई जरूरत इस देश में नहीं है, क्योंकि इस देश में हमने स्त्री को ही शक्ति स्वरूप समझा है। वो स्वयं शक्ति है, उसको सिर्फ स्वयं की शक्ति को विकसित करना है, प्रकटित करना है, शुभ शक्ति के रूप में, विद्या शक्ति के रूप में। और
परिवार संवर्धन के लिए, समाज धारणा के लिए उस शक्ति को उसने स्वयं को प्रवाहित करना है, और अपनी स्वयं की शक्ति को। इसी को यदि हम भगवत गीता की भाषा में देखते हैं तो भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विभूति योग में कि हर इसमें, जैसे नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, या पंछियों में मैं गरुड़ हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, और पुरुषों में मैं राजा हूँ। और ऐसा कहते कहते जब वो स्त्रियों में आते हैं, वो ऐसा नहीं कहते हैं कि स्त्रियों में मैं रानी हूँ, ऐसा नहीं कहते हैं, तो वे कहते हैं कि स्त्रियों में मैं सप्त शक्ति के रूप में प्रकटित होता हूँ। और वो कौन सी सप्त शक्तियाँ हैं? तो कीर्ति, श्री, वाक् च नारीणाम, स्मृतिर, मेधा, धृति, क्षमा, ये 7 शक्तियां हैं, जिसको महात्मा गांधी के जो शिष्य थे विनोबा जी, वो कहते थे ये सप्त शक्ति जो है, ये सप्त शक्ति यदि हम शुभ रूप में उसको विकसित करते हैं स्वयं में, तो यही आध्यात्मिक शक्तियां हैं। और इसीलिए यदि मुझे अगला जन्म है तो मैं स्त्री का जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये 7 शक्ति अपने आप मिलती है स्त्री को। अभी ये 7 शक्ति क्या है? तो पहला है कीर्ति। कीर्ति यानी हम ऐसा वी टेक कीर्ति मीन्स पॉपुलैरिटी वगैरह, इट्स नॉट दैट। कीर्ति मीन्स दैट क्वालिटी इन यू विच मेक्स अदर्स फॉलो यू, अदर्स लर्न फ्रॉम यू। तो ऐसा गुण स्त्री का जिसके कारण बाकी उसका अनुकरण करते हैं, उससे सीखते हैं, और स्त्री में ये गुण स्वयं सिद्ध गुण है। आप जानते हैं कि माँ जिस प्रकार से बातें करती है उस प्रकार से बच्चे बोलते हैं, और छोटा बच्चा पहला सारा माँ से ही सीखता है। और ये भी हम जानते हैं कि 75% ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड गेट्स डिटरमिन्ड in the first 6 years of its age, and these 6 years the child is imitating mother, learning from mother. जब मैं स्कूलों में काम करती थी तब छोटे बच्चों के नर्सरी में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यही जो मैंने पढ़ा था इसको ये सही है क्या, ये मैं देखना चाहती थी। इसलिए बच्चों को देखकर इसकी माँ कैसी बातें करते होगी मैं सोचती थी, और सच में ऐसा ही निकलता था। यानी बच्चे माँ से सीखते हैं। स्कूलों में भी प्राइमरी शिक्षिकाएं जो होती है वो बच्चों को बहुत प्रभावित करती है, और उसी समय पर्सनैलिटी 75% तय होती है। इसीलिए मैं माँ के रूप में, मैं शिक्षिका के रूप में, मैं बड़ी दीदी के रूप में, मैं दादी के रूप में, मैं मेरे छोटे बच्चों के सामने कैसे हूँ, कैसे प्रस्तुत करूँ, इससे मैं आने वाली प्रजा का चित्र तय कर सकती हूँ, हाउ दे विल बी। सो दैट इज कीर्ति शक्ति। फिर दूसरी जो है वह है श्री। श्री यानी एक जो समाधान, एक जो धन का सही उपयोग करने से जो समाधान आता है वो श्री शक्ति। जैसे हम जानते हैं कि कुछ कुछ घरों में वो श्री हमें अनुभूति होती है, कुछ कुछ घर धनी तो बहुत होते हैं लेकिन वो श्री वहाँ मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो स्त्री है वो उस पैसों का जो विनियोग है वह समाधान से, वह धर्म के लिए नहीं करती है। तो कीर्ति श्री, और इसीलिए जिनका श्री गुण है वह अपने घर में कभी भ्रष्ट पैसा आने नहीं देगी, अपने घर के लोगों को कभी गलत काम करने नहीं देगी। वो बोलेगी कि नहीं, ये मेरे घर में नहीं चलेगा। और सच में ऐसी स्त्रियां आज भी अपने देश में काफी संख्या में हैं। तो यह श्री। फिर तीसरा जो है वह है स्मृति। स्मृति यानी ध्यान में रखना, और ये स्त्री का जन्मजात गुण है, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें वो ध्यान में रखती है। वो ये भी ध्यान में रखती है, नहीं क्या 7 बरस पहले हम उनके बेटी के शादी में गए थे, तब वो एक पीली साड़ी पहन के एक वो स्त्री आई थी, उसने मुझे उस खंबे के पास कुछ बोला था। उसका पति कहता है, बाबा रे मुझे तो वो शादी भी याद नहीं आ रही है, और तुमको तो पीली साड़ी, खंबा सब कुछ याद आ रहा है। तो यह जो बारीक बारीक बातें वो ध्यान में रख सकती है। अभी हमने क्या बातें ध्यान में रखना, ये शुभ विद्या शक्ति या अविद्या शक्ति, ये अपने हाथ में है। जैसे
कि भगिनी निवेदिता का एक उदाहरण है कि जब भगिनी निवेदिता अमेरिका यूरोप गई थी तो किसी ने उनको बोला, ओ बट द वीमेन ऑफ इंडिया आर इलिटरेट, इजंट इट? देन शी सेड, नो, द वीमेन ऑफ इंडिया आर वेरी हाईली लिटरेट. Then they told, what are you talking? We are reading in the book. They are highly illiterate. Then she said, no, what do you mean by being literate? Just by reading and writing is literate? No. If you know the best literature of your land, then you are literate. And I tell you, the women of India are highly literate. They know the passages and passages of the best poets by heart. Whether from Ramayana, whether from Bhagavad Gita, whether from the saint literature. So that is what is Smriti Shakti. I remember my mother, in the morning she will start cooking so many stotras, songs, poems, one Savarkar's poem in which it is told that even if the whole family is dedicated to the good of the country, that वह फैमिली निर्वंश नहीं होती है तो वह हमेशा के लिए अमर होती है. जैसे गजेंद्र ने जो फूल तोड़ के भगवान के चरणों में समर्पित किया था, वह कमल का फूल वह अमर हो गया. ऐसी कविता, यानी क्या ये सारा माँ का जो पठन चलता था, उससे हमारे ऊपर बहुत अच्छे संस्कार हुए. और हम सब जानते हैं, पहले हमारे घरों में अपनी माता, अपनी दादी सब ऐसा ही गाती थी. और आज भी वो गुण हम न खोए. अपनी वो जो स्मृति शक्ति है, उससे योग्य प्रजा का निर्धारण करना, अपने मन को उच्च स्तर में रखना, अपने जीवन का प्रयोजन समझना, इसके लिए हम उस स्मृति शक्ति का उपयोग करना है. सो कीर्ति श्री वाक च नारी नाम स्मृति. तीसरी जो है वो वाक है. वाक यानी बोलने की कला. अब ये बोलने की कला यानी ये डिबेटिंग कला नहीं है. डिबेटिंग में शायद पुरुष ज्यादा अच्छे होंगे, या जैसे एकदम आग्रह करते हुए ऐसा बताना, ये उनका गुण है और उनके लिए ठीक है. और स्त्री भी ऐसा करने लगेगी तो वही बात हो गई, किडनी और ब्रेन दोनों एक जैसा काम करने लगेंगे. तो स्त्री का जो गुण है वो वाक चातुर्य है. वो यदि पति या घर के ससुर या कोई भी बहुत जोर जोर से कुछ बताता है तो वो चुपचाप रहती है. वो कहती है ठीक है, उसको मालूम है कौन से समय कब और क्या बात निकालते हुए उनको ठीक से पटाना है, और वैसा वो पटाती है. यदि वो भी पुरुष जैसे आग्रही हो जाएगी, वाद विवाद करने वाली हो जाएगी, तो वो परिवार को तोड़ेगा. और वो हमारा जो नारीत्व का गुण है, वो हमने उसकी रक्षा करनी है. वो आदर्श नारीत्व जो है वो इन सप्त शक्तियों को शुभ मार्ग में प्रकटित करने में है. तो कीर्ति श्री वाक च नारी नाम. वाक के अनेक उदाहरण है, समय नहीं इसलिए मैं वो कहानी नहीं बताऊंगी. लेकिन जैसे हम वो जानते हैं ना, सावित्री का उदाहरण, वो तो है ही, या अनेक उदाहरण है, सारे अपने घरों में भी उदाहरण है. फिर चौथा जो है वह है स्मृति. और स्मृति का भी एक उत्तम यदि प्रूफ ही देना है तो हम जानते हैं कि आजकल परीक्षाओं में कौन अच्छा करता है, तो लड़कियां अच्छी करती है. ऑलवेज द गर्ल्स आर टॉपिंग. नाउ व्हाई इज इट लाइक दैट? बिकॉज द एग्जाम्स हैव बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन मेमोरी and they are better in memory. So the girls, they prove this memory power. Only we have to direct this memory power in internalizing, learning all this great literature of our land. कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम स्मृतिर मेधा. मेधा यानी जो है वह है होलिस्टिक थिंकिंग, यानी समग्रता से किसी विषय को समझना. और ये स्त्री का गुण है, और इसीलिए वो माँ बन सकती है. इसीलिए वो बच्चे को पूर्ण रूप से देखती है, समझती है. यदि बच्चा कोने में ऐसा ही बैठा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि पिताजी गुस्सा करते हैं. पिताजी बोलते हैं, ए उठो, आलसी जैसे क्या बैठे हो. लेकिन माँ कहती है नहीं, ये कभी ऐसा बैठता नहीं है, तो इसको कुछ तो भी हो रहा है. और इसीलिए हॉस्पिटल्स में वगैरह जो नर्सेस रखते हैं वो जनरली लेडीज वीमेन रखते हैं. बिकॉज इवन इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू टेल और शेयर प्रॉपरली, शी कैन अंडरस्टैंड, शी कैन टेक द होल थिंग इनटू अकाउंट. एंड यू नो
for the real development of humanity. Both these intelligence are required. That is the analytical, which is generally the men have, and the second is synthesizing intelligence, which the women have. So this मेधा शक्ति स्त्री की है. इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि राष्ट्र सूक्त जो है वो हमारे देश में एक ऋषिका ने लिखा हुआ है. पूरे राष्ट्र को समझते हुए मैं राष्ट्र के साथ एक रूप हूं, ये जो राष्ट्र सूक्त वेदों का है वो एक स्त्री ने लिखा हुआ सूत्र है. तो ऐसी मेधा शक्ति इस देश में थी और इसीलिए इस देश में हमने कभी स्त्री को निर्बुद्ध, अबला या तुमको कुछ समझता नहीं है ऐसा नहीं समझा. तो हमने उसको बुद्धि की देवता माना है. वो बुद्धि की देवता है, सरस्वती है, उसकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, नो डाउट. बट अगेन टू पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर, द सिंथेसाइजिंग इंटेलिजेंट, द मेधा शक्ति इज रिक्वायर्ड, और वह स्त्री की होती है. कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति. धृति यानी धृति, धर्म, धैर्य, ये सारे ध्रुव इस शब्द से आते हैं. तो धृति यानी पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं. एक बार तय किया कि हाँ ये काम करना है तो वो पूरा करके ही रहना. और ऐसी अनेक माताएं हैं, हम जानते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो सवेरे उठेगी, खाना पकाएगी, बच्चों को स्कूल में भेजेगी. उनका मेंटल स्टेमिना जो है वह प्रचंड होता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस धृति. या एक लड़की जब नए घर में बहू करके जाती है, सारा अलग अलग है, लोगों का बोलने का तरीका अलग है, खाना बनाने का तरीका अलग है, उसको बहुत सीखना पड़ता है, सुनना पड़ता है. यदि हम अपना ये नारीत्व खो देंगे तो हम बोलेंगे कि है इस घर में मेरे साथ ऐसी बात हुई, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, और ऐसा करके हम घर छोड़ के चले जाएंगे. आज दुर्दैव से हमारे देश में जो डाइवोर्सेस हो रहे हैं वो इसी के कारण है कि ये धृति हम में कम हो रही है. तो ये धृति शक्ति जोड़ के रखना, पकड़ के रखना, और धीरे 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 पहले सहन करना और बाद में सबको अपना बनाना, ये जो शक्ति है ये स्त्री की शक्ति है. और इसी के कारण वो माँ होती है, इसी के कारण वो गृह लक्ष्मी होती है, इसी के कारण वो समाज धारणा कर सकती है, प्रजनन कर सकती है. और आखिर की जो शक्ति है वह है क्षमा शक्ति. कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा. छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के हम जीवन में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं. और स्त्री की विशेषता है थी कि वो कितना भी सुनने के बाद बहुत बड़े मन से, क्यों? क्योंकि वो माँ है. हम सब जानते हैं कि जब माँ का हृदय होता है, कोई उल्टी सीधी बात भी करता है, हम उसी को मन में रख के नहीं बैठते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं. क्योंकि मातृ हृदय इतनी छोटी छोटी बातें यदि मन में रखेगा तो वो कभी मातृ हृदय हो ही नहीं सकता है. तो यह जो क्षमा गुण है इसी के लिए वो माँ बनी है. और हम सब जानते हैं जैसे आज पूरे समाज में ही, राष्ट्र में ही स्त्री की ये जो सप्त शक्तियां हैं, क्षमा गुण, धृति गुण, मेधा गुण, आज ये बहुत आवश्यक हो गया है. हमारे समाज टूट रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे राष्ट्र का जो प्रयोजन है पूरे विश्व को मार्गदर्शन करना, वो प्रयोजन हमें पूरा करना है. और यह यदि करना है तो हमारे परिवार फिर से आध्यात्मिक परिवार होने हैं. हमारे परिवार ऐसे होने हैं कि जहाँ आर्य जन्म लेते हैं. स्वामी विवेकानंद कहते थे आर्य कौन है? तो जहाँ माँ अपने तप के बाद ही बच्चों को निर्माण करती है, वो प्रार्थना करती है, ऐसे घर, ऐसे तप पर आधारित परिवार हमें खड़े करने हैं. इसमें और एक बहुत महत्व का प्रश्न कि क्या ये सिर्फ यानी स्त्री ने सिर्फ परिवार तक ही स्वयं को सीमित रखना है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. परिवार, यदि मैं पारिवारिक जीवन को स्वीकारती हूँ तो वह भी एक तप ही है. अच्छा प्रजा का निर्माण करना, संतति का निर्माण करना, पूरे परिवार को एक साथ रखना, वो तप है. यदि मैं वो नहीं करती हूँ, मैं अध्यात्म के मार्ग में, इस समाज धारणा के मार्ग में यदि मैं जाती हूँ तो वह भी तप ही है. और उसमें भी मातृ हृदय से ही हमें काम करना है.
जैसा कभी 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 कोई प्रश्न पूछता है तो क्या स्त्री ने इसका मतलब क्या स्वयं को सिर्फ परिवार तक ही सीमित करना है? तो मैं उनको कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में परिवार की संकल्पना ही क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। परिवार भी बड़ा बड़ा होता जाता है, यानी परिवार तो है ही, फिर अपना बड़ा परिवार होता है, फिर अपनी लोकेलिटी ही परिवार जैसी होती है, फिर अपना ग्राम परिवार जैसा होता है, यह राष्ट्र भी परिवार जैसा है, यह पूरी वसुधा ही परिवार जैसी हो। तो आज ये जोड़ने वाले तत्वों की इस पूरे मानव समाज को ही बड़ी आवश्यकता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शारदा माँ ने जो जन्म लिया है वो फिर से स्त्रीत्व का ये जो आदर्श है, ये जो आध्यात्मिक मातृत्व का आदर्श है, उसको प्रस्थापित करने के लिए, क्योंकि इसी को लेकर यह राष्ट्र फिर से खड़ा होगा और जगत गुरु होते हुए पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगा। तो ऐसा मार्गदर्शन करने का भाग्य हम सबको स्त्री करके जन्म लेते हुए मिला है। तो इसीलिए अपने अपने स्तर पे अपने मातृ हृदय को विकसित करते हुए, अपने इन सप्त शक्तियों को विकसित करते हुए हम आदर्श सतीत्व, आदर्श नारीत्व को प्रस्थापित करें। ऐसी इस ऐतिहासिक जगह पे प्रार्थना करते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच श्रीमती निवेदिता भिड़े फॉर द वेरी पावरफुल मैसेज, फॉर द वेरी पावरफुल डिलीवरी। हम लोगों को तो ऐसे लगा जैसे स्वामी जी स्वयं निवेदिता दी के मुंह से अपना मैसेज दे रहे हों। थैंक यू वेरी मच दीदी। नाउ वी विल हैव अ skit by students of Rasik Bita. The skit will depict the relevance of Swami Vivekananda's message today. I request the speakers, yes, to kindly go to the sofas. Did you hear the story? Yes, that funny story. Very fun. I told her that. Hey, did you see the posters? Where? What posters? On the notice board, it's a 3-day event at Shobha Bazar, Rajbari to celebrate Swamiji's 160th birth anniversary. So? You don't want to join? Can we? Sure, come with me. I'll show you the posters. Okay. Well, I don't think I'm interested. Hello. Hello. Sonakshi. Did you hear the story? Yeah, that funny story, you know. Very funny. I told her that it is absolutely. Hey, did you see the posters? Where? What posters? On the notice board, it's a 3-day event at Shobha Bazar, Rajbari to celebrate Swamiji's 150th birth anniversary. So? So, you don't want to join? Can we? Sure, come with me. I'll show you the posters. Okay. But I don't think I'm interested. These are old stuff. Why do you call it old? The thoughts, the ideas, the energy, the spirit have appealed to the young people like us. Well, but I am not convinced. I have seen my mother's bookshelf stuffed with such books. And believe me, these are beyond my understanding. Well, come with me. I'll read out a letter of Swamiji. And I'm very much sure it will help us to understand life in a better way. But to whom was the letter written? To Mary Hill. She was one of the 4 sisters of the Hill family who gave shelter to Swamiji when he arrived at Chicago. Let's read it. You, Mary,
will make a splendid queen, physically, mentally. You will shine alongside of a dashing, bold, adventurous, heroic husband. But my dear sister, you will make one of the worst of wives. You will take the life out of our easygoing, practical, plodding husbands of the everyday world. Mind, my sister, although it is true that there is more romance in actual life than in any novel, yet it is few and far between. Therefore, my advice to you is that until you bring down your ideals to a more practical level, you ought not to marry. If you do, the result will be misery for both of you. In a few months, you will lose all regard for a commonplace, good, nice young man, and then life will become insipid. There are two sorts of persons in the world.